Hello students. So in the last class we cover this topic, refraction from rarer to denser medium, refraction from denser to rarer medium. So in the last class we cover these topics. So in our today class we solve some of the numericals on the basis of this equation which we derived in the next class. So first move to some formulas to solve some numericals, then after that we solve some interesting numericals. Okay, so this is a formula corner of your numericals part. So first, when the object is at rarer medium and the refraction from rarer to denser medium, we also derive this equation, that is when the object is in the rarer medium and refraction takes place from rarer medium to denser medium. So the formula is mu2 upon v minus mu1 upon u is equal with mu2 minus mu1 upon r, and mu1 is always a rarer medium and mu2 is always a denser medium. Okay, ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना. mu1 होता है rarer medium, mu2 होता है denser medium. Then next one, when object is a denser medium, अब object denser medium में शिफ्ट हो गया. So refraction from denser to rarer medium, हम लोग लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किए थे. जब हम लोग mu2 को mu1 से इंटरचेंज कर देंगे और mu1 को mu2 से इंटरचेंज कर देंगे तो ये सेकेंड वाला रिलेशन आ जाएगा. दैट इज mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन u इज इक्वल विथ mu1 माइनस mu2 अपॉन r. ओके, then how we can calculate the power of the refracting surface. Okay, how we can calculate the power of the refracting surface. Power का फॉर्मूला होता है power equal to mu2 minus mu1 upon r, and r must be in मीटर. अगर वो सेंटीमीटर में है that means आप लोग को उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. अगर यहाँ पर दिया गया है r equal to 25 सेंटीमीटर, that means you have to convert it in मीटर by dividing 100. Okay, ये हो गया अब मीटर में कन्वर्ट. सो आर जब भी आपका सेंटीमीटर में गिवन होगा आपको पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, देन आप लोग को पावर का फॉर्मूला पावर का जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? इट इज डायोप्टर विच इज डिनोटेड एज कैपिटल डी. ओके, देन प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ द सरफेस. हम लोग प्रिंसिपल फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? व्हाट इज द फोकल लेंथ? वी नो दैट हियर इज द मिड पॉइंट विच इज पोल एंड इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सॉरी, यहाँ पर अगर ऐसा सरफेस लेते हैं मतलब ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द फोकस. वी नो दैट. सो मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज फोकस. एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. हमेशा याद रखना दैट इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस. ओके, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. सो हम लोग एक भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का अगर फोकल लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब दो फोकल लेंथ भी हो सकते हैं. सो यहाँ पर दो फोकल लेंथ की फॉर्मूला है. द फर्स्ट फोकल लेंथ, अगर ये वाला फर्स्ट फोकल लेंथ हम लोग कंसिडर करते हैं f1 और दिस वन इज f2. सो f1 इज इक्वल टू माइनस mu1 r अपॉन mu2 माइनस mu1. देन f2 इज इक्वल टू mu2 अपॉन mu2 इंटू r अपॉन mu2 माइनस mu1. दोनों टर्म ये वाले सेम है, खाली इस वाले टर्म में mu1 है बिकॉज हियर f1 इज देयर. f1 जहाँ पर वहाँ पर mu1, मतलब यहाँ पर अगर mu1 मीडियम है, यहाँ पर अगर mu2 मीडियम है, मतलब mu1 मीडियम में जो भी फोकल लेंथ है वो है आपका f1 एंड mu2 मीडियम में जो फोकल लेंथ है वो है f2. ओके, सो माइनस mu1 r एंड mu2 r. Okay, so these are the formula for the calculating of principal focal length of the surface. Now we are solving some of the interesting numericals belonging this all of the formulas. Okay, let's move to the question number 1. So what is the question number 1? Light from the point source in air falls on a convex spherical surface. Okay, light from point source in air falls on a convex spherical surface, glass surface का refractive index है 1.5 and here radius of curvature also given to you, that is 20 centimeter. Calculate the position of image. यहाँ पर क्या find out करने के लिए दिया गया है? What is v?
when the light source is at 1 meter from the glass surface. Light source mean it is the object. So here given that given क्या क्या है, u equal to 1 meter, okay, which one is 100 centimeter, v we have to find out, r equal to 20 centimeter, okay. So see, light from a point source, it is a convex spherical surface. convex spherical surface मतलब मान लो ऐसे है, ओके. convex spherical surface ये हो गया आपका पोल. मान लो यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है, ओके, यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ए पॉइंट सोर्स इज इन द एयर मीडियम. तो ये वाला होता है आपका रेयरर मीडियम, जिस तरफ आपका कन्वेक्स सरफेस का फेस होता है. सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो रेयरर मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट है. सो यहाँ पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, दैट मीन्स रे ऑफ लाइट इज इन दिस डायरेक्शन. सो हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव साइन. तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन हम लोग इनपुट कर देंगे. देन उसके बाद देखते हैं हमारा आर का साइन क्या होगा. ऑब्वियसली आर का साइन यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पर आर जो बन रहा है, आर हमारा पॉजिटिव है, ओके. सो हम लोग को फाइंड आउट करना है वी. लेट्स फाइंड आउट. सो यहाँ पर रेयरर मीडियम होता है μ1 एंड डेंसर मीडियम होता है μ2. एंड ये है आपका एयर. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 एंड डेंसर मीडियम विच इज ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ओके. तो सारा गिवन हो गया. रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को रिफ्रैक्शन हो रहा है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ओके. ये है आपका फॉर्मूला. सो हम लोग अब पुट करते हैं 1.5 अपॉन b माइनस 1 बाय माइनस ऑफ 100. तो μ2 हो गया 1.5 माइनस 1 अपॉन 20, ओके. सो 1.5 अपॉन b प्लस 1 बाय 100 इक्वल टू 0.5 बाय 20. सो 1.5 अपॉन v इक्वल टू 0.5 बाई 20 माइनस 1 बाय 100. सो इसको अगर सॉल्व करेंगे, 100 हो गया LCM, ये हो जाएगा आपका 2.5 माइनस 1, इट इज 1.5 अपॉन 100, ओके. सो 1.5 अपॉन v, 1.5 अपॉन 100. सो v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके. तो 100 सेंटीमीटर इसका साइन क्या आया, पॉजिटिव साइन आया. दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव. इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है मतलब आपके इस साइड में इमेज कहीं पर बन रहा है एट द 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस. मतलब आपका ऑब्जेक्ट भी 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस के में है और आपका इमेज भी 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ही है, ओके. सो यहाँ पर इमेज का जो नेचर होगा वो किस टाइप का नेचर होगा, वो डायरेक्टली मीट कर रहा होगा रेयर के साथ, इसी वजह से यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है. तो इस इमेज का नेचर होगा रियल इमेज. कभी कभी नेचर भी आप लोग को फाइंड आउट करना होता है. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज, इट इज रियल इमेज, ओके. देन नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. A small point object is placed in air at a distance of 60 सेंटीमीटर. सो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है और एयर में रखा गया है, मतलब रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट है. फ्रॉम ए कन्वेक्स स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ म्यू 1.5. इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल सरफेस इज 25 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ द इमेज एंड पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. यहाँ पर पोजिशन के साथ साथ हमें पावर भी फाइंड आउट करना है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो ये गिवन दैट, यहाँ पर भी वैसे ही एक डायग्राम बना लेते हैं. दैट इज पोल. यहाँ पर है आपका रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट, ओके. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर पर. तो गिवन दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस 60 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग पोल से ऑब्जेक्ट तक मेजर करेंगे. सो माइनस 60 सेंटीमीटर. देन v हम लोग को फाइंड आउट करना है.
पावर हम लोग को फाइंड आउट करना है, एंड μ1 इज रेयरर मीडियम विच इज एयर, एंड μ2 इज 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज +25 सेंटीमीटर. ओके, सो ये भी हमारा रेयरर से डेंसर मीडियम तक हो रहा है. तो रेयरर से डेंसर मीडियम के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज μ2 अपॉन v, μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ओके, सो ये हो गया 1.5 अपॉन v माइनस 1.1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 60, 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 25. Then again 1.5 अपॉन v प्लस हो गया 1/60, ये हो गया 0.5/25. सो 1.5 अपॉन v इक्वल टू 0.5/25 माइनस 1/60. तो इसको अगर हम लोग कर देते हैं फ्रैक्शन में तो ये हो गया 5/10 25, ये हो जाएगा आपका 1/50 माइनस 1/60. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ये हो गया आपका एलसीएम 306 माइनस 5 विच इज 1/300. ओके, सो हियर 1.5/v इज इक्वल विथ 1/300. देन आफ्टर दैट v, अगर v फाइंड आउट करेंगे v इक्वल टू 1.5 इंटू 300. ओके, v इक्वल टू 1.5 इंटू 300 विच इज 450 सेंटीमीटर. सो ये भी पॉजिटिव साइन है. पॉजिटिव साइन है मतलब ऑब्वियसली ये रियल इमेज फॉर्म हो रहा है. देन नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट पावर. पावर इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. μ2 क्या है 1.5 माइनस 1 अपॉन r. r क्या है 25 बट सेंटीमीटर पर है. सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज डिवाइडेड बाय 100 विच इज इन मीटर. ओके, तो ये हो गया हमारा 0.5 0.25. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ये हो गया आपका 2. पावर का यूनिट होता है डायोप्टर. सो पावर इक्वल टू 2 डायोप्टर. ओके, so the the image distance is at 450 centimeter and the power of the refracting surface is 2 diopter. Okay, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया. Then move to the next question which is the third question. So the next question, a dust particle is inside a sphere. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. A dust particle is inside a sphere. यहाँ पर एक dust particle है inside a sphere which is O of refractive index 4/3. तो ये स्पीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 4/3 as shown in the figure. Where does it appear to the observer outside the sphere? मतलब बाहर में एक ऑब्जर्वर है, उसे ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखाई देगा. गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 15 सेंटीमीटर. सो सी हियर वी कंसीडर 2 केसेस. वाई? बिकॉज ऑब्जर्वर यहाँ भी हो सकता है. ओके, ऑब्जर्वर इस साइड में भी हो सकता है. मान लो अगर ऑब्जर्वर इस साइड में है तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा. एंड ऑब्जर्वर अगर इस साइड में है तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो ऐसा होगा. ओके, तो यहाँ पर हम लोग 2 केस लेके सॉल्व करेंगे कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ होता है तो उसको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर होता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा. पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है. सो रिफ्रैक्शन देखो, बेसिकली अगर ऑब्जर्वर रे ऑफ लाइट को देख रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ से पास कर रहा है ऑब्जेक्ट से. ओके, डस्ट पार्टिकल से जब रे ऑफ लाइट पास करेगा दैट मीन्स इट इज मूव टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. ये बाहर वाला मीडियम जो है वो एयर मीडियम है, तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के तरफ जा रहा है. तो ये वाला जो भी हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर से रेयरर मीडियम वाला रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो उसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सर हियर वी कंसीडर केस 1. ओके, और यहाँ कंसीडर करते हैं केस 2. तो केस 1 के लिए
u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सी r हमारा है 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज r, ये अगर हमारा पोल होता है, मतलब ये मान लो कि यहाँ पर एक बड़ा सा स्पीयर ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल, अगर हमारा ऑब्जर्वर इधर कहीं पर है। ओके, सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज 15 सेंटीमीटर। हियर वन डस्ट पार्टिकल जिसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो डस्ट पार्टिकल का पोल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज़ ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर, 15 माइनस 5 दिस इज 10 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। अब देखना है ये प्लस होगा या माइनस होगा, ऑब्वियसली रे ऑफ लाइट जो जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड हम लोग जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं, सो इट इज -10 सेंटीमीटर। देन अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम लोग पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मेजर कर रहे हैं, सो -15 सेंटीमीटर। ओके, देन इधर बोथ साइड एयर है तो μ1 हो गया 1 because μ1 is the refractive index of the rarer medium and μ2 is the refractive index of denser medium which is 4/3। इतने डाटा हम लोग को मिल गए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ओके, सो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ओके, सो ये हो गया μ1 हो गया 1/v, देन ये वाला हो गया 4/3 इंटू u हो गया हमारा -10, 1 माइनस 4/3 माइनस 15। ओके, सो दिस वन इज 1/v प्लस 2/15, देन ये वाला चीज़ को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कितना, ये आपका हो जाएगा 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 5, सो यहाँ पर हो गया कितना 2/15, 2/15 ये हो गया 3/3 माइनस 4, 3 इंटू -15। ओके, देन आफ्टर दैट 1/v प्लस 2/15, ये कितना हो जाएगा, ये वाला अगर सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका -1 बाय -45 विच इज 1/45। सो 1/v 1/45 माइनस 2/15 विच इज इक्वल टू -5/45। सो अगर v फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/v इक्वल टू -5/45, तो v हो गया हमारा -9 सेंटीमीटर। ओके, -9 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द इमेज इज ऑब्वियसली वर्चुअल। ओके, यहाँ पर इमेज कौन सा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो कैसे बन रहा है उसको भी अगर देखना चाहो तो देख लो। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हुए गया, अगर यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, हियर we draw a normal from the center of curvature. Okay, when the ray of light traveling from the denser medium to rarer medium, it bend away from the normal like this, it bend away from the normal, so we extend it in the backward direction. Okay, हम लोग इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर कहीं पर इमेज फॉर्म होगा, जिस इमेज का डिस्टेंस है पोल से दैट इज 9 सेंटीमीटर। हो गया, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सोल्यूशन वेयर द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बिकॉज द रेज आर एक्चुअली नॉट मीट, इट इज़ द एक्सटेंडेड रेज। ओके, देन केस 2 भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। अब जो ऑब्जर्वर है, अब उस ऑब्जर्वर को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ पर कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ओके, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगी और इंसिडेंट करेगी आपके सरफेस पर, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर पोल हो गया, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो
अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर एंड पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया पी सी, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी सी प्लस सी ओ। ओके, तो ये कितना हो गया 15 प्लस 5 विच इज़ 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ऑब्वियसली इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं, सो ये हो गया आपका नेगेटिव साइन विच इज़ -20 सेंटीमीटर। बाकी सब वैसे ही लिखते हैं। आर इक्वल टू हो गया आपका -15 सेंटीमीटर, μ1 इज इक्वल विद द 1, μ2 इज इक्वल विद 4/3। तो यहाँ पर हो गया μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। तो ये हो गया 1/v माइनस 4/3 इंटू -20, देन 1 माइनस 4/3 अपॉन -15। तो इस चीज़ को जब सॉल्व करोगे 1/v माइनस, इस चीज़ को जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/15। तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 4, 3 इंटू -15 इसको लिख दो। देन उसके बाद इस चीज़ को जब सॉल्व करोगे ये आएगा 1/v, 1/v का वैल्यू आएगा आपका दैट इज ये हो गया प्लस 1/15, ये हो गया माइनस 1/-45, ये हो गया 1/45। तो 1 अपॉन v विच इज 1 अपॉन 45, 1 अपॉन 15, तो ये हो गया कितना -45/2। ओके, तो v का वैल्यू हो जाएगा हमारा -22, v का वैल्यू हो जाएगा -22.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये भी इमेज जो होगा ये भी इमेज वर्चुअल होगा। ओके, तो ये वाला हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये वाला हो गया 20 सेंटीमीटर, ये -22.5 सेंटीमीटर बन रहा है पोल से, मतलब ऑब्जेक्ट के इधर कहीं पर बन रहा है। ओके, तो 20 सेंटीमीटर से और थोड़ा सा दूर -22.5 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Okay, see, a mark placed on the surface of a sphere is viewed through glass from a position directly opposite. Okay, so if the diameter of the sphere is 10 सेंटीमीटर, जो स्पीयर का जो डायमीटर दिया गया है वो है 10 सेंटीमीटर, and the refractive index of the glass is 1.5, then find the position and nature of the image. So see here, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है u, ओके, सो ए मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्पीयर, यहाँ पर कहीं पर एक मार्क किया गया है सरफेस ऑफ द स्पीयर में। ओके, इज व्यूड थ्रू द ग्लास फ्रॉम ए पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट। ओके, मतलब यहाँ अपोजिट साइड से कहीं से इस पोजीशन को व्यू किया जा रहा है, मतलब यहाँ से कहीं से इस पोजीशन को व्यू किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर ये मान लो ये आपका पोल है, यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो ये हो गया पोल, तो ये यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट जो कि एक मार्क है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -10 सेंटीमीटर। ओके, देन आर क्या हो जाएगा, ओब्वियसली डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, मतलब आर भी हो गया कितना -5 सेंटीमीटर। ओब्वियसली हमारा यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, ए मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्पीयर इज व्यूड थ्रू द ग्लास फ्रॉम ए पोजिशन डायरेक्टली अपोजिट। ओके, व्यूड थ्रू द ग्लास, ओके, ग्लास के थ्रू में वो दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स जो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है वो डेंसर से रेयरर मीडियम को हो रहा है। ओके, क्योंकि ग्लास के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, मतलब डेंसर से रे ऑफ लाइट जब आ रहा है तभी तो आप लोग देख रहे हो, मतलब आप लोग रेयरर मीडियम में हो एंड आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। तो यहाँ पर हो गया बेसिकली जो μ1 हो गया आपका रेयरर मीडियम विच इज 1 एंड μ2 विच इज़ द डेंसर मीडियम 1.5।
तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, μ1/v माइनस μ2/u, μ1 माइनस μ2/r। इसी चीज़ को सॉल्व करो, 1/v माइनस 1.5 अपॉन -10, 1 माइनस 1.5/-5 विच इज -0.5 -5, ये हो गया 0.55, 1/10। ओके, सो 1/v इक्वल टू 1/10, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग आ जाएगा आपका कितना, 1.5/10। सो 1/v इक्वल टू 1 माइनस 1.5/10 माइनस 0.5/10 विच इज -1/20। सो यहाँ पर आपका v आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। सो द नेचर ऑफ द इमेज, ओबियसली ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है मतलब सेम साइड में ही इमेज बन रहा है, सो इट इज ए वर्चुअल इमेज। हमेशा याद रखना जब आपका u एंड v का सेम साइन हो, u एंड v का सेम साइन हो, दैट मीन्स इट इज ए वर्चुअल इमेज। ओके, देन व्हेन द u and v are opposite sign, then it is real image। ओके, ये आपकी स्पेरिकल सरफेस के केस में होता है। सो इट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सो सी, what curvature must be given to the bounding surface, मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया है, what curvature, that means find out the radius of curvature, what curvature must be given to the bounding surface of mu, मतलब μ2 हो गया 1.5 which is denser medium, for virtual image of the object in the medium μ1 at 10 centimeter to be formed at a distance of 40 centimeter। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, u जो है वो है -10 सेंटीमीटर एंड v जो है -40 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट फॉर वर्चुअल इमेज, इमेज इज वर्चुअल, ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मीडियम ऑफ द μ-1 at 10 centimeter to be formed at the distance of 40 centimeter. That means object and image is in the same medium. That's why object is -10 centimeter and image distance is -40 centimeter. So we have to first calculate the power of the refracting surface, also the principal focal length of the surface. Okay, तो यहाँ पर पावर फाइंड आउट करने के लिए μ2 माइनस μ1/r, तो हम लोग को पहले r फाइंड आउट करना है, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर r फाइंड आउट करते हैं। सो द रिफ्रैक्शन इज, मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, रेयरर टू डेंसर। ओके, यहाँ पर जो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपके म्यू इक्वल टू 1 में रखा गया है, मतलब रेयरर मीडियम में रखा गया है। सो आपका रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर मीडियम के लिए हो रहा है। सो यहाँ पर वैसे ही सॉल्व करते हैं। रेयरर से डेंसर मीडियम के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल विथ μ2 माइनस μ1/r। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1.5 अपॉन -40, 1/-10, 1.5 अपॉन -1/r। ओके, तो ये हो गया 1.5 -40, ये हो गया प्लस 1/10, देन 0.5/r। देन उसके बाद इसको अगर सॉल्व करते हैं इस वाले टर्म को तो 40 हो गया। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं 40 एलसीएम लेने के बाद ये हो गया 1.5 -1.5 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो होगा 2.5/40 एंड ये हो गया 0.5/r।
तो यहाँ हो गया कितना 2.5 इंटू आर, ओके 2.5 इंटू आर, ये हो गया 0.5 इंटू 40। तो यहाँ से अगर आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज 0.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाय अगर 2.5, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। सो द कर्वेचर शुड बी 8 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पावर। अगर आपका कर्वेचर 8 सेंटीमीटर निकल रहा है, मतलब कर्वेचर यहाँ पर आपका पॉजिटिव है। अगर कर्वेचर पॉजिटिव निकल रहा है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, तो किस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है? जब आपका कन्वेक्स सरफेस होता है। ओके जब भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है मतलब इधर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है, तो ये वाला कन्वेक्स सरफेस है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कन्वेक्स सरफेस के लिए बोला जा रहा है। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। μ2 क्या हो गया 1.5 माइनस 1, तो ये 8 सेंटीमीटर है, सो 8/100। सो अगर 1.5 माइनस 1 ये कितना हो गया 0.5, इसको कर देंगे 8/100 जो कि हो गया 0.08। तो ये आपका कितना आएगा? इसको सॉल्व करने से आएगा 6.25 डायोप्टर। ओके सो पावर इज 6.25 डायोप्टर। देन प्रिंसिपल फोकल लेंथ के लिए हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़े हुए थे। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? F1 इज इक्वल टू माइनस μ1 आर μ2 माइनस μ1। देन μ1 क्या होगा? -1 इंटू 8, 1.5 ये हो गया आपका कितना -1 -16 सेंटीमीटर। ओके देन उसके बाद अगर सेकेंड फोकल लेंथ हम लोग फाइंड आउट करें, μ2 आर μ2 माइनस μ1 इज इक्वल विथ 1.5 इंटू 8, 1.5 माइनस 1 इट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। सो द प्रिंसिपल फोकल लेंथ्स आर -16 सेंटीमीटर एंड अनदर वन इज 24 सेंटीमीटर। ओबियसली जो कन्वेक्स सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस के पॉजिटिव साइन मतलब इंसिडेंट, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है रेयर और मीडियम में, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मतलब इधर जो फोकल लेंथ बन रहा है दैट इज F2। तो F2 जो फोकल लेंथ इधर बन रहा है, मान लो ये फोकस है, ये पोल है, और पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ। तो F2 जो बन रहा है वो पॉजिटिव है, मतलब F2 इधर है, और यहाँ पर जो फोकस है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है F1, दैट इज 16 सेंटीमीटर। दैट्स वाई इट इज नेगेटिव साइन। ओके so here are some important numericals that we solved in our today class. You also solve some of the numericals from the different types of books also. Okay so thank you for the today class. Thank you all of you.